مزہ صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ امریکہ کو بہت بغور دیکھ بھی رہے ہیں، اس پوری صورتحال کو بھی آپ جانتے ہیں. کیا لگ رہا ہے آپ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کا سٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے؟ وہ صبح کچھ ہوتا ہے، رات کو کچھ ہوتا ہے، مارکیٹس کھلنے سے پہلے کچھ اور ہے، مارکیٹس کے بعد کچھ اور ہے. اب انہوں نے ایک نیا آرڈر دے دیا ہے کہ جی آبنائے ہرمز کی ہر جو کشتی ہے چھوٹی بڑی اس کو نشانہ بنایا جائے. شکریہ آسمہ. ایک تو یہ کہ آپ نے اتنے دو انتہائی اہم دفاعی تجزیہ کاروں کے بیچ میں مجھے بٹھا دیا ہے. میں دفاعی تجزیہ کیا کروں گا؟ لیکن میرے خیال میں مجھے جو ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس ساری سچویشن میں ہم ایک چیز کو شاید نظر انداز کر رہے ہیں کہ اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے اور اسرائیل کیا سوچ رہا ہے. اگر آپ دیکھیں اس چیز کو کہ اسرائیل کی جو خاموشی ہے ویزاوی ایران والے ایشو کے اوپر، وہ بڑی معنی خیز ہے. اور اگر آپ اس چیز کو بھی دیکھیں کہ یہ جو سیز فائر ہے، اس کا ظاہر ہے یقینی طور پہ یہ بہت اہم چیز ہے اور سیز فائر ہونا بہت اہم تھا، اور امید یہ تھی کہ شاید سیز فائر کے بعد معاہدہ ہو جائے گا. اور یہ جو ابھی تازہ ترین سیز فائر ہوا ہے جو ظاہر یونیلیٹرلی امریکہ نے خود کیا ہے اور اس کی کوئی ٹائم فریم نہیں دی ہے، اس ساری سچویشن میں اگر آپ دیکھیں تو ایک مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اگر یہ سیز فائر کی ڈیڈ لائن جو ختم ہوئی تھی یہ ایکسٹینڈ نہیں ہوتی اور جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے، تو اس کا ظاہر ہے ایران کے جو ٹارگٹ پہ تھے وہ تو اسرائیل تھا، ایران کے ٹارگٹ پہ. اور پچھلی جو جنگ ہوئی ہے اس سے سیز فائر سے پہلے، اس میں بھی جو خاص ہدف تھا ایران کا وہ اسرائیل ہی رہا تھا. ظاہر امریکہ تک تو نہیں جائے گا ان کا، لیکن اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل کو بھی امریکہ نے ڈیلیبریٹلی ایک بریک دیا ہے. یہ یاد رکھیں کہ آئیڈیالوجیکلی نہ امریکہ موجودہ ایرانی شکل کو برداشت کر رہا ہے نہ اسرائیل کر رہا ہے. اور یہ ایک ایسی سچویشن ہے، اب انہیں ایک موقع جو آبنائے ہرمز میں انہوں نے بلاکٹ کیا ہے اور جس بلاکٹ کو وہ ختم کرنے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ اگر مذاکرات ہو رہے تھے 48 گھنٹے کے لیے 72 گھنٹے کے لیے ختم ہو جاتا تو کوئی حرج نہیں تھا. تو آبنائے ہرمز میں ایک جنگ جاری ہے اور جو سیز فائر ہے وہ بالکل ایک دوسری چیز ہے. یہاں سیز فائر اپلائی نہیں ہو رہا. بالکل اس چیز کو ان کے ایران کے جہاز پہ بھی قبضہ کر لیا اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے. تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو ایک سپیس مل رہی ہے اور ایک بریک مل رہی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ جو ہے وہ کسی سیریس ٹاکس کی طرف جانے میں، اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ انٹرسٹڈ نظر آ رہے ہیں. وہ ٹائم گین کر رہے ہیں. وہ اس سچویشن سے ظاہر انٹرنلی انہیں ضرور ایشو ہے، لیکن نوئنگ ڈونلڈ ٹرمپ اور وہ جو یہ بار بار مختلف اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، یہ بھی ایک کنفیوژن اور سائیکولوجیکل پریشر کے طور پہ دے رہے ہیں، جس سے ایک کنفیوژن رہے، ایک پینک رہے. ورنہ انٹینشنلی تو مجھے بالکل صاف نظر آتا ہے یہ کہ یہ جو جتنا پرولونگ یہ چیز کرے گی اور کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اور بلاکیڈ اپنی جگہ قائم رہے گا، تو الٹیمیٹلی جب بھی پھر اگر خدا نہ خواستہ جنگ دوبارہ ریزیوم ہوتی ہے تو ہمیں دیکھنا یہ کہ اسرائیل کا کیا رد عمل ہوگا. کیونکہ مجھے اس سیکٹر میں زیادہ وہ مجھے لگ رہا ہے میٹر آف کنسرن. ان کا ابھی لبنان کے ساتھ کیا ڈیل ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی ہے الگ بات ہے، آج ہی حملہ کیا ہے، جرنلسٹ وہاں پہ شہید ہوئی ہیں. بالکل مصعب، اور وہ بڑے چپکے جو ہے وہ لبنان کے اندر تو وہ حملے کرتے چلے جا رہے ہیں. گو کہ سیز فائر کا کہا گیا ہے، ہوا بھی ہے، مگر اس کے باوجود حملے ہو رہے ہیں. تو دران صاحب بالکل آپ کے ساتھ اگر اس بات کو بڑھائیں کہ ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، دوسری طرف مذاکرات کا. آج جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سٹیٹمنٹ دے دیا کہ ایران کے اندر قیادت نہیں ہے، قیادت کو آپ نے خود ختم کر دیا. اب وہ کہتے ہیں جی پاسداران الگ سوچ رکھتے ہیں، یہ الگ، ہارڈ لائنرز الگ اور یہ الگ، اور 3 سے 5 دن کا ٹائم دے دیا کہ اب آپ اس کے اوپر سوچیں اور ہمیں بتائیں. تو کیا ایران تسلیم کر لے گا اس بات کو کہ ان کی وہ امریکہ کے کہنے کے اوپر وہ تو پہلے ہی انٹرسٹڈ نہیں ہے اس دفعہ جو دوسرے راؤنڈ کے لیے، تو ان کا کیا رد عمل آ سکتا ہے یا کیا وہ سوچ سکتے ہیں؟ جی شکریہ آسمہ. میں سمجھتا ہوں پریزیڈنٹ ٹرمپ آپ نے بھی اس میں اپنے انٹروڈکشن میں فرمایا، اب ان کا پتہ نہیں چلتا وہ کیا کہتے ہیں کیا، اور ان کی جو ہے اعتبار کرنے کو دل نہیں چاہتا کہ انہوں نے وار ایکسٹینڈ کر دی ہے، وہ سیز فائر. لیکن
उसके साथ ही उन्होंने जो है पर्शियन गल्फ में वो ब्लॉकेट भी कर दिया है। ये भी दिस इज अनदर वे ऑफ कंडक्टिंग द वॉर और कंटिन्यूइंग द वॉर, ये मसला वो है। और दूसरा ये है कि वो जो ये धमकियां तो वो देते रहे, उन्होंने तो ये भी धमकी दी थी कि हम जो है वो ईरानी सिविलाइजेशन को ही खत्म कर देंगे जी। तो इस तरह की अब वो इसलिए बड़ा यानी अनसर्टेनिटी सी आ जाती है, खासकर एक अमेरिकी प्रेसिडेंट के मुंह से, जिसका आज तक एटलीस्ट जब से अमेरिका को मैं जानता हूँ होश में आने के बाद कभी किसी प्रेसिडेंट की इस तरह की जबान कभी वो यूज नहीं करते थे। लेकिन ये कि अब इन्होंने जो है इस तरह की जबान कि अब उस पर आदमी यकीन करने पे ही जो है वो उसको शक होता है कि ये सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। दूसरा ये है कि ईरान जो है मेरे ख्याल में मुज़ाकरात तो जारी हैं, लेकिन उसमें अभी एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा। जो आप समझे कि जो क्लोज डोर है थ्रू मीडिएटर्स यानी इसमें पाकिस्तान है, उसके जरिए पैगाम रसानियां हो रही हैं, लेकिन अभी थोड़ा उस पे आगे बढ़ेंगे तो कोई बात बनेगी, लेकिन अभी वो बात हुई नहीं। आपको क्या लगता है मुश्किल कहाँ है? जी, कल का दिन बड़ा क्रूशियल है, कल का जिसमें जो है वो इम्कान ये है कि ये इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स कुछ फैसला हो जाएगा। जी, नेक्स्ट 48 आवर्स की आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है, लेकिन हर्डल आपको कहाँ लग रहा है इस वक्त, कहाँ मुश्किल है कि ईरान नहीं मान रहा कि वो टेबल के ऊपर आए? देखिए, अच्छा एक और आपने जिस में पूछा था ये रिगार्डिंग दिस रेजिम कि जी वो प्रेसिडेंट ट्रम्प फरमाते हैं कि वो हार्डलाइनर्स हैं, मॉडरेट्स हैं, फलां। मेरे ख्याल में ये एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि ईरान के अंदर और खासकर वॉर कंडीशन में ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि और फिर ये नहीं भूलना चाहिए कि ईरान के अंदर जो सिस्टम है उसमें वलायत फ़क़ीह जो सुप्रीम लीडर है वो फाइनल अथॉरिटी एंड ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द फोर्सेस। और ये जरूर है कि ईरान के अंदर जो है वो क्लर्जी रूल है उसके अंदर, लेकिन उनके इंटरनल जो है वो मॉडरेट्स और हार्डलाइनर्स जरूर करते हैं, लेकिन वो अपनी पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए हैं। बट दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, वो उनमें कोई फर्क नहीं है। जब वो ईरान का इंटरेस्ट आएगा तो वो जाहिर है वो एक है। और इसके बाद ये ना भूलिए कि ईरान का जो है वो एक 12 नेशनलिस्ट लोग हैं, उनको और उनकी एक कंटिन्यूस 5000 की सिविलाइजेशन है, तो वो उनको पता है कि उन्हें कैसे करना है। बल्कि जितने भी माजी में अगर कोई वो इन्वेडर्स भी आए तो वो उन्होंने ईरानाइज कर दिया, उसको अपने ही अंदर जम कर लिया। उस कल्चर में इतनी जो है कशिश भी है, पावर भी है और असर भी है। तो इन तमाम हकीकतों के बाद अब वो कल्चर खत्म नहीं हुआ। और दूसरा ये है कि अभी जो उनके ख्याल ये है कि वो अब भी सो कॉल्ड कोट एंड कोट रिजीम चेंज की तरफ कर लेंगे, और फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प ये भी इशारा करते हैं कि हमने रिजीम चेंज कर दी। हालांकि उनको ये नहीं पता है कि वो उन्होंने शख्सियात को तो ठीक है उन्होंने मार दिया, लेकिन वो जो सिस्टम तो वही है, सिस्टम को तो चेंज नहीं कर सकते और ना होगा। एटलीस्ट वो सिस्टम रेजिस्ट जरूर करेगा, और अगर कोई चेंज आएगी तो इंटरनल आएगी। इंटरनल चेंज अभी मुझे कुछ नजर नहीं आती, तो इसलिए अमेरिका को इस मास पे भी कामयाबी जो है मुश्किल है कि हो। जी अच्छा माशा साहब, अब ये जो ब्लॉकेट की बात है, अब जो हम देख रहे हैं कि कहने को तो नज़र नहीं आ रहा, मगर एक दूसरा मरहला लड़ाई का शुरू हो गया और वो है आबनाए हुर्मस के कंट्रोल का। तो आपको क्या लगता है कि जो ऑर्डर्स आ रहे हैं मिलिटरीली, कल हमने देखा कि असलहे की कमी की रिपोर्ट आई पेंटागन की तरफ से, आज पेंटागन कह रहा है कि जी आप जो है वो आज उनके जनरल साहब जो हैं उनको फारिग कर दिया। तो क्या है कशमकश है? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो ईरान के कंट्रोल में, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। जो ब्लॉकेड है ना वो है कोई तकरीबन 150 किलोमीटर पीछे या आगे आप कह लें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के, और उससे ये है कि जो ट्रैफिक अंदर आ रही है और बाहर जा रही है उसको अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। ये जो स्टेट है इस वक्त, हम इसको ना एक फ्रिजाइल इक्विलिब्रियम कहते हैं स्ट्रेटेजिक टर्म्स में, जिसका मतलब ये होता है कि ना आप जंग की स्टेट में हैं और ना ही आप पीस की स्टेट में हैं, और लम्हा ब लम्हा इवेंट टू इवेंट आप डिसाइड करते हैं कि जी कि आपने किस तरह बिहेव करने।
जो हम स्टेटमेंट्स आसमा साहिबा सुन रहे हैं ना, इसको भी हम लेट्स से स्ट्रेटजिक टर्म्स में कहते हैं सेबर रेटलिंग, कि जो है ना फौजें एक दूसरे के सामने जब खड़ी हुई होती हैं तो वो शोर मचाती हैं सिर्फ दूसरे एनिमी के ऊपर धाक बिठाने के लिए। सो मेरा ख्याल जो हम अमेरिका से और ईरान से सुन रहे हैं वो जो है क्या कहते हैं सिर्फ सेबर रेटलिंग है और कोई नहीं है। और एक्चुअली जो है ना मुज़ाकरात पीछे बिहाइंड क्लोज डोर्स हो रहे हैं और ये जो सारा कुछ हो रहा है ना ये अपनी अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई करने के ये दुरान साहब ने भी यही कहा है, उन्होंने ये कहा है कि अगले 24 घंटे या 48 घंटे जो भी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बातचीत पीछे चल रही है। आप भी यही बात कर रहे हैं कि पीछे तो मुज़ाकरात चल रहे हैं और पाकिस्तान भी सरगर्म है उसके लिए जी ऑलमोस्ट। मगर जी सॉरी मैं जो क्यूरियस मैं हूँ वो ये कि प्रेसिडेंट ट्रम्प सुबह उठ के किसी से भी वो बयानात दिलवा सकते हैं, वो खुद बयानात देते हैं, इसका कितना असर पड़ रहा है? बहुत ज्यादा। अगर मेरे ख्याल प्रेसिडेंट ट्रम्प अपना ट्रुथ सोशल का अकाउंट 2-3 दिन के लिए बंद कर दें तो वैसे ही मुआहदा हो जाएगा क्योंकि वो जब देखिए जब भी आप कोई इस तरह की गुफ्तगू करते हैं जो आपके एनिमी को डिस्टर्ब करते हैं या उसकी ईगो को हर्ट करते हैं तो वो बिल्कुल नहीं तैयार होता आपसे मुज़ाकरात करने के लिए। और एग्जैक्टली ईरानी उसी स्टेट में आ गए हैं। दोनों कंट्रीज जो हैं वो इस कॉन्फ्लिक्ट से एक्चुअली तंग आ चुकी हैं मेरे नज़दीक और दोनों के अंदर बहुत कीन डिज़ायर है अपनी अपनी वजूहात की वजह से कि किसी तरीके से इस जंग से निकला जाए। लेकिन दोनों चाहती हैं कि क्या कहते हैं एक नोशन ऑफ विक्ट्री के साथ निकलें ताकि दोनों जो हैं वो अपने अपनी अक़वाम को ये बता सकें कि जी कि हम ये जंग जीत गए हैं। हाँ, लेकिन और यही वो चीज़ है जिसके लिए मेरे ख्याल पाकिस्तान और जो सारे मीडिएटर्स हैं उनके लिए मुश्किल हो रहा है कि वो क्या ऐसी चीज़ यानी एक ऐसा मुआहदा बना लें कि दोनों जो है वो सेटिस्फाई हो सके। जहाँ तक मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 95% चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं। जो चीज़ें जिनके ऊपर ईरान ज़रा थोड़ा सा अपसेट है वो ये है कि वो ये अमेरिका ये चाह रहा है कि वो है ना 0% के ऊपर चले जाएं जैसे वो ओमान टॉक्स के अंदर वो एग्री कर गए थे। लेकिन ईरान इस चीज़ पे नहीं मान रहा। वो ये कह रहा है कि जो इंटरनेशनल लॉ के तहत जो भी एक किसी कंट्री को दुनिया में इजाजत है यूरेनियम को एनरिच करने की वो उनके पास भी होनी चाहिए। सो ये एक स्टिकिंग पॉइंट है 1। नंबर 2 वो ये चाहते हैं कि जो है ना कोई गारंटी उनको मिलनी चाहिए कि क्या कहते हैं कि उनके ऊपर दोबारा हमला नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह मजहर साहब ने भी कहा जो एलिफेंट इन द रूम है ना वो इजराइल है। और अगर आप पिछले 1 साल में इजराइल की हरकतें देखें तो आप ये देखेंगे कि 3 मरतबा वो जो पीस टॉक्स है उनको स्कटल कर चुका है। और अभी भी बिहाइंड अंदर एक टर्मोल आया हुआ है। पहले उनके चीफ ऑफ द आर्मी को किया, अब चीफ सेक्रेटरी नेवी को कर दिया, यानी नेवल जंग है और ही इज द हेड ऑफ द नेवी इन अमेरिका। ठीक है ना। वो ये सिर्फ इस वजह से है कि जो लोग सेंसिबल बातें करते हैं और प्रेसिडेंट ट्रम्प को एक सेन एडवाइस दे रहे हैं उस वक्त जो उनके करीबी रुफ़का है ना प्रोबेबली वो उस एडवाइस को लेना नहीं चाहते इजराइल की वजह से या अपने इंटरेस्ट की वजह से। और वो ये चाहते हैं कि जंग कंटिन्यू करे। लेकिन होपफुली यानी कि जिस तरह वक्त गुजर रहा है और मीडिएटर्स बीच में एक्टिव हैं, सेंस इज प्रिवेलिंग। अच्छा, ये दोनों ने आपकी और दुरानी साहब की बात सुन के तो मुझे थोड़ी हौसला अफजाई हुई है कि इसका मतलब ये है कि टेबल पे लोग आ सकते हैं, अभी भी ईरान और अमेरिका बैठ सकते हैं और बिल्कुल इस तरह के सिग्नल्स मिल रहे हैं। मेरे अपने जो ज़राए हैं वो भी ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि तेहरान भी सूनर और लेटर जो है वो आएगा और शायद अगले 48 घंटों में 2-3 जो दिन बनते हैं उसमें बहुत अहम डेवलपमेंट्स इस सिलसिले में पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जो है वो हो सकती है। एक छोटी सी मैं ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे कि मुज़ाकरात के मरहले के अंदर जो रुकावटें हैं वो क्या हैं और फिर पाकिस्तान का किरदार कितना अहम है, चीन का किरदार भी बहुत अहम है और आज चीन ने एक स्टेटमेंट भी दी है, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।